और अब 2025 में यानी 54 साल बाद बटा और बलूचिस्तान बना। ਮਤਲਬ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ, इस्लामाबाद। मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी। क्या तो कौन है वो नेता मीर यार बलूच, क्योंकि उनकी डीपी तक पे भी कुछ नहीं लगा हुआ है? कौन? जी मैं अनफॉर्चुनेटली खुद ही गाफिल हूँ, मैं खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूँ कि कौन है। और मोहब्बत की हुंदी चले जी नू जी हुंदी। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਆਸਕਿੰਗ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ 13 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਯੂਰ ਲਵ ਐਂਡ ਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 46 ਜਾਂ 44% ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗਦਰੀ ਯੋਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਉਹ ਥੋਪੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਕੁ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਹੀ ਡਿਸਕਲੇਮਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੌਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ है, एक वीडियो के जरिए आ जाओ। दोस्तों, बलूचिस्तान नाम के शब्द का मतलब क्या है? हमें लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान प्रोविंस है ये वही है, बट ये एक्चुअली में उससे बहुत ज्यादा बड़ा है दोस्तों। अच्छा, बलूचिस्तान सिर्फ वही नहीं, उस तो ਉੱਪਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। बलूचिस्तान का कंसेप्ट समझना है तो आप कुर्दिस्तान का कंसेप्ट समझ लो। कुर्द एथनिसिटी के लोग जिन जिन इलाकों में रहते हैं वो उन इलाकों को जोड़ के एक बड़ी कंट्री कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं। तो टर्की में जो कुर्द का इलाका है, इराक में है, ईरान में है, कुछ हद तक सीरिया आर्मीनिया में, उसको जोड़ के पूरी कंट्री बना दो कुर्दिस्तान, जहां पे कुर्द रहते हैं। उसी प्रकार से बलोच लोग जहां जहां पे भी हिस्टोरिकली रहते हैं उस इलाके को जोड़ के बलूचिस्तान बना लो। तो जो पाकिस्तान का 44% लैंड मास है 44 या बलूचिस्तान का, वो तो इसमें आता ही आता है। साथ साथ ईरान की जो साउथ ईस्टर्न प्रोविंस है सिस्तान बलूचिस्तान की, वो भी इसमें आता है। और जो साउदर्न अफगानिस्तान का नीमरोज, हेलमंड और कांदाहार प्रोविंस है वो भी इस पर्टिकुलर बलूचिस्तान के इलाके में आता है। तो इन तीन कंट्रीज के इन इलाके को जोड़ दो तो पूरा का पूरा बलूचिस्तान बनता है। इससे पहले बलोक एथनिसिटी के पॉलिटिशियंस कई बार बोल चुके हैं कि हमें एक ऐसा मूवमेंट चलाना चाहिए जहां पे इन तीनों इलाकों को जोड़ के एक अलग से कंट्री बना दो। और इनके लिए एक एडवांटेज ये भी होगा कि अगर ये कंट्री बनती है तो उसके पास सी एक्सेस भी होगा। बट अपने आप में बहुत मुश्किल है होना। सबसे ज्यादा बलूचिस्तान मूवमेंट पाकिस्तान में एक्टिव है, ईरान अफगानिस्तान में उतना एक्टिव नहीं। ਓਕੇ ਸੋ ਚਲੋ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਆ जाओ। आज से एक हफ्ते पहले पाकिस्तान भारत के हाथों पूरी तरह से पिटा था और एक हफ्ते बाद ਇਹਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ। ही पाकिस्तान के लिए एक और बुरी खबर आ गई है जिसकी आशंका शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर लगा रहे थे, वो अब सच हो चुका है। क्या? अब पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट चुका है। बलोच विद्रोहियों ने बलोचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है। बलोच के नागरिकों ने अपना अलग झंडा और अपना नक्शा भी जारी कर दिया है। बलोच विद्रोहियों ने संयुक्त राष्ट्र से अपील की है कि वो उन्हें अलग देश की मान्यता दें। 54 साल पहले पाकिस्तान से भारत से पंगा लिया था पाकिस्तान ने, तो बांग्लादेश बना था। इस बार पंगा लिया है तो बलोचिस्तान बन गया। पाकिस्तान का करीब 40% हिस्सा उससे अलग होने के बेहद कगार पर है। जनरल मुनीर आज रात नींद नहीं आई, कहना पहले भारत से पिटा अब टुकड़ों में बंटा। राइम तो वधिया कीती है। पहले भारत के हाथों पिटा और अब दो टुकड़ों में बट गया पाकिस्तान। ये धमाके की आवाज पाकिस्तान के दो हिस्सों में बंटने का वीडियो सबूत है। नफरत की बुनियाद पर बना पाकिस्तान पहले 1971 में बटा, बांग्लादेश बना और अब 2025 में यानी 54 साल बाद बटा और बलूचिस्तान बना। मतलब बन गया, मतलब मीडिया ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि बलूचिस्तान वखरा हो गया है। मतलब एडी वड्डी चीज हो गई होवे ते यार, मतलब ऑफिशियल्स दे बयान ना आए होण कि ट्विटर ते किसी ने ट्वीटां ना कीतियां होण, ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਸਟ ਹਜੇ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਰਾਚੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼। दुनिया के मानचित्र पर अब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान नाम का नया देश साफ साफ दिख रहा है। बलूचिस्तान की गली गली में आजादी के नारे बुलंद हो रहे हैं, जश्न का दौर है। पाकिस्तानी आर्मी के बूटों तले रौंदी जाती रही आवाम आज आजादी की हवा में सांस ले रही है। 14 मई 2025 को बलूच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की आजादी की घोषणा कर दी। बलूचिस्तान के स्वतंत्र सेनानियों की तरफ से बलूचिस्तान का अलग राष्ट्रीय झंडा और बलूचिस्तान का अलग नक्शा वो बंदे ने घोषणा करती है, आप देख लो, जारी किया गया है, जिसमें बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग दिखाया गया है। बलूचिस्तान के इस झंडे के साथ खान में लोगों ने प्रदर्शन किया। बलूचिस्तान की आजादी उस पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के मुंह पर एक और तमाचा है, जिसका ऐलान था कि बलोचों की आजादी की आवाजें कुचल दी जाएंगी। ओके खड़ो, एक और चीज है मेरे को उड़ा दिए हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की 1971 जैसी हालत होने वाली है। लंबे समय से बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे बलूचों ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया है। 14 मई 2025 को बलूच लेखक और कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के लोगों ने अपना राष्ट्रीय फैसला ले लिया है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और दुनिया को चुप नहीं रहना चाहिए। उन्होंने भारत से नई दिल्ली में बलूच दूतावास खोलने की अनुमति भी मांगी और संयुक्त राष्ट्र से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और अच्छा मैं भी सुनिया ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ IMF ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। मुद्रा, पासपोर्ट और अन्य संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्रदान करने की भी मांग की है। बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका होगा और अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान के पास एक देश के तौर पर बहुत कुछ नहीं बचेगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा है और खनिज संसाधनों से भरा हुआ है। सवाल उठता है कि क्या भारत को ऐसे मौके का इस्तेमाल पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए करना चाहिए? क्या भारत को बलोच स्वतंत्रता सेनानियों को मान्यता देकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए? क्या प्रकृति 1971 को एक बार फिर से दोहरा रही है? क्या आज की तारीख में ऐसा संभव है कि भारत बांग्लादेश निर्माण की तरह पाकिस्तान को तोड़कर एक और आजाद देश बलूचिस्तान का निर्माण करे?
विशेषज्ञों की माने तो ऐसा किया जा सकता है। भारत अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो इसकी वजह से पाकिस्तान बेहद कमजोर हो जाएगा। 1948 में ओके अच्छा ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਨਡੀਟੀਵੀ ਤੇ ਜੋ ਮਹਿਰਾਨ ਮਰੀ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਜੋ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੁਖੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਲੋਚ ਲੀਡਰ है जो वो देखते हैं जो रिकॉग्नाइज करेगी। तो आप क्या माने जो ये विजुअल्स दिखाए जा रहे हैं कि बहुत सारी लेडीज हैं और पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे एक मेहरान जो है हाँ, उनका भी एक इंटरव्यू आ रहा है, बाइट्स आ रही हैं एक तरीके से, वो स्पीच दे रही हैं वो कि बलूचिस्तान अब अलग होगा। तो मतलब क्या वो सब क्या चीज है, वो क्या अभी आज की नहीं है? जी वो सब रियलिटी है। डॉक्टर मारंग बलोच एक बहुत खूबसूरत न्यू ग्राउंड रियलिटी ऑफ बलूचिस्तान। ਓਕੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਤੇ URHRC ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ है हमारे यूथ की रियलिटी है जो ऐसे एजुकेटेड बाशऊर जवान फीमेल्स फोर फ्रंट पे है हमारे आजादी की तहरीक में। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारा दुश्मन जो है बहुत बुज़दिल और आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड बेगैरत है। वो औरतों का और बच्चों का इज्जत और एहतराम नहीं समझता है। उन्होंने इस लीडर को जेल में डाला हुआ है समेत और BYC के और जो बलोच एकजहती कमेटी के बहुत और औरतें और मर्द और जवान सब जेल में बैठे हुए हैं। ये प्रोटेस्ट काफी सालों से चल रहा है। पहले वहां कदीर चलाते थे, डिसिपेट बलोच, फिर डॉक्टर मारंग बलोच, डॉक्टर समीम, सब जेल और सबको जेल में डाला हुआ है। तो बिल्कुल एक रियलिटी है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ग्राउंड लेवल पे हो रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, फुल फ्लेज वॉर ऑफ लिबरेशन चल रहा है बलूचिस्तान में। पाकिस्तानी फौज, नापाक फौज टोटली नाकाम हो चुका है बलूचिस्तान में। इनके अपने मौलाना फजल रहमान ने महीने डेढ़ पहले बोला था अगर बलोच अपना मुद्दा यूनाइटेड नेशन में ले जाएं तो 8 डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी इनके कंट्रोल में है तो UN इनको आजाद तस्लीम करेगा। तो हमारा बात काफी आगे चल चुका है। पंजाबी इस्टेब्लिशमेंट ना पाकिस्तान तो डिनाइल में रहता है। वो एक ऐसा मुनाफिक मुल्क है जो खुद ही कलमा पढ़ के बोलता है हमारा मुल्क कोई कलमे से बना कलमा लेकर, जिन्ना को कलमा पढ़ना आता ही नहीं है, वो खुद ही काफिर था। तो आप अंदाजा करिए ये तो पूरा एक ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा है, मुल्क तो नहीं है, ऐसे लुटेरों का टोला है, गुंडों लुचों का। वहीं अगर हम बात करें मेहरान साहब, अगर बाई चांस आपके जो बलूच मूवमेंट है, क्या जो बलूच मूवमेंट की क्या कोई एक लीडरशिप मुमकिन है आपके हिसाब से? एब्सोल्युटली जी, बलोच कौम में बाशऊर लीडरशिप का कोई कमी नहीं है। बलूचिस्तान का जो तहरीक आज इस नैच पे आया है, इंटरनेशनली हो, ऑन द ग्राउंड हो, पॉलिटिकली हो या मिलिटरीली, हर जगह बलूचिस्तान का तहरीक काफी एडवांस हो चुका है। आप देखें जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, हाईजैकिंग हुआ उस ट्रेन का, बलोच सरमाचारों ने ऐसा मुजाहरा किया जो नापाक 2 टक्के के फौजियों ने नहीं किया, इनके जनरलों ने नहीं किया। उन्होंने बोला हमने 214 फौजी POWs पकड़े आपके, प्रिजनर्स ऑफ वॉर अकॉर्डिंग टू जिनेवा कन्वेंशन, और बोला हमारे प्रिजनर स्वैप करो। और उन्होंने बिल्कुल इग्नोलॉजी इस बात को नहीं किया, उन्होंने 214 फौजियों को मरवा दिया, बिल्कुल इग्नोलॉजी नहीं किया। तो हम तो भेड़ियों के साथ डील कर रहे हैं, अनसिविलाइज्ड भेड़ियों के साथ डील कर रहे हैं। तो बलोच फौज जो रेगुलर आर्मी नहीं है, बट दे हैव अ हायर मॉरल ग्राउंड। वहीं एक चीज और भी आ रही है कि मीर यार बलूच की तरफ से एक तरीके से पूरा ट्विटर पे भी उन्होंने एक अपील की है कि वो एक फंड की भी बात कर रहे हैं कि फंड हो, उन्होंने और ऐलान भी यही चीज किया। तो कौन है वो नेता मीर यार बलूच, क्योंकि उनकी DP तक पे भी कुछ नहीं लगा हुआ है, कौन? जी मैं अनफॉर्चुनेटली खुद ही गाफिल हूं इससे, मैं खुद ही आइडेंटिफाई नहीं कर सकता हूं कि कौन है। तो क्या मतलब मानते हैं कि क्या कोई ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਧਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ IMF ਤੋਂ ਫੰਡ ਮੰਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ फेक वाले भी बड़े फिरदे होंगे या कोई प्लानिंग चली जा रही है, क्या किसकी तरफ से हो रहा है कि आप खुद ही रिप्रेजेंटेटिव है बलूचिस्तान के UNHRC में, EU के अंदर, और ये आप ही को ही नहीं मालूम है ये सारी चीज लोग कौन है जो कर रहे हैं? ये एक मुल्क का मुद्दा उठा रहे हैं, एक बहुत सीरियस इश्यू है और इस मैच पे जो हम ऑलमोस्ट सच में इंशाल्लाह आजाद होने वाले हैं, और इधर UFO अनआइडेंटिफाइड पीपल एक दावे करें, कम से कम हमारे साथ शेयर तो करते हैं, हमको आइडेंटिफाई तो अपने को करें। अगर कल मैं बोल रहा हूँ कोई बात, लोग मुझे जानते हैं मैं कौन हूँ, अगर ऐसी आइडेंटिटी को उनका सीक्रेट आइडेंटिटी वाले ऐलान करें तो थोड़ा डूबियस लगता है, लेकिन मैं फिर भी उसके खिलाफ नहीं कहूँ। बातें तो अच्छी हैं, मुझे सुनने में पसंद आ रहा है, आई लाइक हियरिंग इट, लेकिन आई डोंट नो हु इज सेइंग इट। तो अब आप लोगों का क्या, अगर जिस तरीके से आप कह रहे नहीं है तो आप लोग भी क्या, क्योंकि आप खुद EU के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप कुछ और प्रोटेस्ट या आप कुछ एक डालेंगे, ट्वीट करेंगे कि भाई कौन हो तुम, क्या कुछ सवाल आप पूछेंगे ये जिस तरीके से? जी अच्छी बात कर रहा है, आई होप इट कम्स ट्रू। हम दुआ गो कि जो कोई बोल रहा है तो यही बातें सच हो जाएं, मतलब जो बातें सर्कुलेट कर रहे हैं, आई होप देयर सम सेंस ऑफ रियलिटी टू इट, और अच्छी बातें हैं। शायद इसमें कोई हैशटैग के जरिए से कोई सीरियस ले ले सब कुछ को, लेकिन अगेन ऑन अ सीरियस नोट जी, दिस हैज मेनी फॉर्मेलिटीज, मेनी एंगल्स, मेनी पहलूज, एंड इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। इसको इंडियन गवर्नमेंट ही आगे ले जा सकता है, गल्फ कंट्रीज आगे ले जा सकते हैं, OIC हो, इधर इंडिया अपना क्लाउड यूज करके गल्फ कंट्रीज में सब कतर, इमारात, सऊदी, जो भी पावरफुल कंट्रीज है वहां पर, उनका फर्ज बनता है, उनका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बलूचिस्तान के आजादी के मुद्दे को फॉर्मली प्रेजेंट करे टू द वर्ल्ड। वही मैं ज्यादा एक दो आखिरी सवाल, जैसे अभी आपने खुद देखा कि पहलगाम में ओके सो गाइस ਇਹ ਸੀਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਐਂਡ ਇਟਸ ਕੁਆਇਟ ਸੀਰੀਅਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ,
ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਲਵੀਆਂ ਮਿਲਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਆ ਹਜੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ UNHRC ਦੇ ਐਂਡ EU ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ। ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਇਨ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲੋ ਵਾਟਸ ਯੂਅਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਔਨ ਦਿਸ ਮੈਟਰ। ਮਿਲਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ।